Hello students, how are you? My name is Vikas Yadav. Today I'm going to discuss about the moment distribution method for frames. Moment distribution method is used to analyze the indeterminate structures, and as we know that indeterminate structures are those structures which cannot be analyzed by using equations of static equilibrium. uh, In my previous lectures, I have completed the analysis of continuous beams with moment distribution method. In this lecture, I will discuss about the analysis of frames. Okay, let's start. Suppose a frame is given to us, and the frame which is given to us has three spans: span AB, span BC, and span CD. As it is clear from its diagram, on span AB and span CD there is no any load. Only span BC having a UDL type loading of intensity 20 kN per meter. Moment of inertia also given for each span. For span AB it is 2I, for span CD it is also 2I, and for span BC it is I. Okay. Uh, the first step is find the fixed end moment, and fixed end moment find करने के लिए फिक्स्ड एंड मूवमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ केसेस देखने होंगे. However, I have completed it in my previous lecture. फिर भी आप इसका एक लुक ले सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं. जनरली 4-5 केसेस होते हैं जो हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं. These are the cases: case A, case B, and case C, case D. For case A, in case A, there is a beam having a UDL of intensity W kN per meter. For such type of loading, the fixed end moment will be calculated as follows. MAB, for each span there are two fixed end moments. Suppose this is a beam AB having UDL, then the fixed end moments will be MAB, M bar AB, and M bar BA. हर टाइप की लोडिंग कंडीशन के लिए फिक्स्ड एंड मूवमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज. सेकेंड केस है, this is the second case. If a beam having a point load at its center, then we can use these formula to find the fixed end moment. MAB will be minus WL by 8 and MBA will be plus WL by 8. Minus sign indicates that the movement is anti-clockwise. Similarly दूसरे केसेस भी हैं, आप इनको देख लेना. In our case we have UDL condition. Okay, let's start. First, find the fixed end moment. Fixed end moment can be find out as follows. M bar AB, M bar BA, M bar CD, M bar DC will be equals to 0 because there is no load on span AB and span CD. CD पे कोई भी लोड नहीं है, ओनली BC स्पैन पे लोड है, वो भी UDL है. सो MAB, AB स्पैन के लिए M बार AB ये भी 0 होगा, एंड M बार BA
ये भी 0 होगा। सिमिलरली m bar CD will be equals to 0 and m bar DC will be equals to 0। दोनों फ्रेम्स के लिए देखो हर एक फ्रेम के लिए 2 फिक्स्ड एंड मूवमेंट होंगे, तो 2 फ्रेम के लिए 4 फिक्स्ड एंड मूवमेंट, और चारों फिक्स्ड एंड मूवमेंट दोनों फ्रेम के लिए चारों फिक्स्ड एंड मूवमेंट क्या होंगे 0, क्योंकि कोई भी लोड नहीं है दोनों मेंबर्स पे, दोनों स्पैन पे। फॉर स्पैन BC m bar BC विल बी -WL²/12। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि यूडीएल टाइप लोडिंग है तो उसके लिए MBC होगा -WL²/12 एंड m bar CB, ये यहाँ CB आएगा, m bar CB विल बी ये तो वही है, m bar BC will be WL²/12, m bar BC will be -26.67 kilonewton meter. Similarly m bar CB will be plus WL²/12 and we will get 26.67 kilonewton meter. Okay, next step is find the distribution factor. Next step is find the distribution factor. To find the distribution factor, we have to make a table. The first column of table will have the joints name. In our case, there are 2 joints, joint B and joint C, and at each joint there are 2 members. At joint B there are 2 members, BA and BC, and at joint C there are 2 member CB and CD. For each member we will calculate distribution factor, and distribution factor is K divided by summation K. The third column of this table will contain the relative stiffness K. This is the K means relative stiffness, and relative stiffness depends upon the condition of far end. Okay, as we know that if the far end is fixed or continuous, then relative stiffness will be I by L. Okay, let's see the member BA. For the member BA, this is our frame, this is A and this point is B. For member BA, we are at B and A is our far end. Far end is fixed, this is the fixed, we are at B, far end is fixed, and as I told you, if the far end is fixed or continuous, then relative stiffness will be I by L. So we use I by L here. I for span AB is given 2I, and L is 5 meter, it is given to us. Then we will get 0.4 into I. Okay, similarly for BC, for span BC, this is our frame structure, this is B and this is C, this is UDL. We are at B and C is our far end. C is a continuous, क्योंकि C के बाद पॉइंट D है, तो C continuous है, एंड अगर फार एंड continuous या फिक्स है तो वैल्यू होगी I by L। तो वैल्यू क्या होगी I by L, यहाँ भी I by L लिखेंगे। I for span BC is I which is given to us, and L for span BC is 4. The value will be 0.25 into I. Similarly for CB, we are at C, this is our frame, we are at C, this is C point and this is D point. D is the far end, D is again fixed, then value will be I by L, and here we get 0.25 into I. थोड़ी सी मिस्टेक, मैं वैल्यू तो ठीक है लेकिन वी आर एट सी, वी आर एट स्पेन CB स्पेन CB, this is a B point. B is again the continuous
and if the continuous, then the relative stiffness will be I by L, and value will be 0.25 into I. Okay, for span CD, D is our far end and far end is fixed again, and the value will be I by L. For span CD, value of I is 2I. 2I divided by 5, we get 0.4I. 0.4I. The summation of these two values will be 0.65I and 0.65I. Both values are same. Distribution factor is K divided by summation K. Distribution factor is K divided by summation K. K for member BA is 0.4I and summation is 0.65. So DF for member BA. For BA, DF will be 0.4I divided by 0.65 into I. Here we get 0.62. क्लियर होगा आपको? For member BC we get 0.38. similarly यही फॉर्मूला, because K for member BC is 0.25 and summation is 0.65. सारी चीज़ें लिख रखी हैं यहाँ पर एक एक करके. For member CB we get 0.38. for member CD we get 0.62. Next step is to find the moment distribution, to find the final moment by moment distribution process. To calculate the final moment, and for the distribution of moment we have to make a table. First of all, write all the points, point A, point B, point C and point D, and draw a line below each point. This is for A, this is for B, this is for C and this is for D. In the first row we write member, in the second row we write distribution factor, in the third row we write FEM, means fixed and moment. This is FEM, means fixed and moment, which we have already calculated. In the next row we write minus of summation M. Minus of summation M means movement का sum और फिर उसका negative sign. Movement का sum और उसके आगे उसका negative sign. In the next row we get multiply the summation M and DF, and in the next row we write CO. CO means carry over. कैरी ओवर आगे लिख रखा है कि कैरी ओवर क्या करेंगे, कैरी ओवर हम जो ये जो प्रोडक्ट हमें मिला है इन वैल्यूज़ को कैरी ओवर करेंगे इन द क्रॉस पैटर्न. इन द क्रॉस पैटर्न का मतलब ये इस साइड चली जाएगी, ये वैल्यू इस साइड. मैं बताऊंगा आगे जब ये इसकी बारी आएगी तब आपको पता चलेगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. ये ऊपर जो हेडिंग है, दिस हेडिंग इज मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन. दिस स्टेप इज मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन. ये आपको दिख नहीं रहा है तो ये है मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, लिख रखा है यहाँ पे मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन. इन द फर्स्ट रो फॉर ए देर इज ओनली वन मेंबर ए बी. फॉर ए दिस इज अवर केस, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट. फॉर ए पॉइंट पे ए की मेंबर है, ए बी मेंबर. फॉर बी दिस इज बी पॉइंट, बी इज ए ज्वाइंट एंड हमें पता है कि ज्वाइंट पे एक से ज़्यादा मेंबर होंगे, तो बी पे दो मेंबर हैं, बी ए एंड बी सी. ये बी ए गया यहाँ से, ये बी सी गया इस साइड. सिमिलरली एट सी देर आर टू मेंबर ऑल्सो, सी बी एंड सी डी. फॉर डी देर इज ओनली वन मेंबर, डी सी. दिस इज डी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, डी सी. नाउ राइट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. जो वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी वो सारी वैल्यूज यहाँ लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में. फॉर ए बी वी डिडंट कैलकुलेट एनी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ए बी, सो राइट इट 0. फॉर बी ए वी हैव कैलकुलेटेड इट एंड वी गोट 0.62. For member BC we got 0.38. Similarly for CB 0.38, for CD 0.68, and we didn't calculate any DF value for
member DC, so write here 0. Next is fixed end moment. Write the fixed end moment. Fixed end moment भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं. This is 0 for AB, MAB, M bar AB is 0. M bar BA is also 0. ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ. ये 0 लिख दो यहाँ पर जो वैल्यूज आई थी. ये -26.67 है फॉर BC. M bar BC ये हमारा आया था -26.67. -26.67 for CD it is 26.67 and for CD it is 0 and for DC it is also 0. Next summation M, माइनस ऑफ समेशन M. समेशन यानी कि सम यानी कि एडिंग. ऐड कहाँ ऐड क्या होंगी, जहाँ पे एक से ज़्यादा वैल्यूज होंगी उन्हीं को तो ऐड करेंगे. ओके एक से ज़्यादा वैल्यूज हमें मिलेंगी ज्वाइंट पे. देखो बी ज्वाइंट ये है, बी ज्वाइंट ये है ज्वाइंट सी. बी ज्वाइंट पे फिक्स्ड एंड मोमेंट की दो वैल्यूज हैं. ये दो वैल्यूज आपको दिख रही होंगी. दो वैल्यूज हैं यहाँ पे. दो वैल्यूज एक बी ए के लिए यानी कि एक है एम बार बी ए और दूसरी है एम बार बी सी. एक ही ज्वाइंट पे दो वैल्यूज मिलेगी. इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे. ये 0 एंड -26.67, 0 -26.67 इनको ऐड कर दिया. हमें मिला क्या, -26.67. लेकिन हमें लेना क्या है, माइनस ऑफ समेशन. माइनस वैल्यू बाहर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, +26.67. तो यह मैंने लिख दिया. देखो 26.67. सिमिलरली वी गेट -26.67. इस केस में हमें प्लस मिलेगा यहाँ, लेकिन हमें माइनस लेना है तो क्या मिलेगा, -26.67. ओके. नेक्स्ट वी मल्टीप्लाई summation M and DF. Summation M and DF. Okay, this is here distribution factor for AB is 0, so the product will be 0 क्योंकि multiply 0 से करेंगे कुछ भी तो 0 आएगा. Here for BA this is the summation M and distribution factor is 0.62. तो 0.62 multiplied by 26.67 we get 16.53 हमें मिलेगा. ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी. Similarly here we get 10.13, here we get -10.13, here we get -16.53, here we get 0. Okay, next step is carry over. We carry over these values in the form of 1/2 मीन्स इनकी हाफ वैल्यू. 0/2 क्रॉस पैटर्न में कैरी ओवर करेंगे. साइड में ले जाएंगे 0 को. लेफ्ट साइड में 0 है उसको राइट साइड में ले जाएंगे. 0 का हाफ 0 होगा. 16.53 का हाफ यहाँ लेके जाएंगे, दैट इज 8.26. 10.13 का हाफ यहाँ लेके जाएंगे, 5.06. -10.13 का हाफ यहाँ लेके जाएंगे, दैट इज -5.06. सिमिलरली ये हाफ यहाँ ले जाएंगे, इसका हाफ यहाँ पर ले जाएंगे. ओके ये मेन स्टेप्स हैं यहाँ तक, कैरी ओवर तक. यहाँ अब कैलकुलेशन स्टॉप हो सकती है. ये जो हम आइट्रेशन कर रहे हैं, ये जो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस चल रही है, ये यहाँ हम स्टॉप कर सकते हैं. स्टॉप कब करेंगे, इस स्टेप के बाद हम चेक करेंगे एट ईच ज्वाइंट पे जो हमें वैल्यूज मिली. हमें पता है कि एक ज्वाइंट पे एक से ज़्यादा वैल्यू मिलेंगी, दो वैल्यू मिलेंगी. तो दोनों वैल्यू, एक तो ये वैल्यू और दूसरी ये वैल्यू, या तो ये 0 होनी चाहिए या फिर अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए. अब लेफ्ट साइड में तो 0 है, लेकिन राइट साइड में -5.06 है, तो ये भी 0 होनी चाहिए. अगर ये यहाँ 0 होती तो ये वैल्यू यहाँ रुक जाती और हम फाइनल मूवमेंट कैलकुलेट कर लेते. सिमिलरली फॉर ज्वाइंट सी देर आर ऑल्सो टू वैल्यूज. 5.06 एक वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू ये है. दोनों 0 या 0 के आसपास होने चाहिए ज्वाइंट पे. बाकी हो या ना हो, लेकिन ज्वाइंट पे जो वैल्यूज हैं कैरी ओवर करने के बाद जो वैल्यूज आई वो 0 या 0 के नज़दीक होने चाहिए, बहुत ही वेरी क्लोज टू 0. तो फिर आइट्रेशन हम रोक देंगे और फाइनल मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे इन अवर केस अब तक हमें 0 वैल्यू नहीं मिली है, तो फिर हम आइट्रेशन को आगे बढ़ाएंगे.
फिर से रिपीट करेंगे स्टेप, कहाँ से, समेशन एम से, माइनस ऑफ समेशन एम मीन्स ये जो वैल्यूज़ दो वैल्यूज़ मिली इनको सम करेंगे और उसका माइनस, यहाँ इन दोनों को सम करेंगे, 0 माइनस 5.06 वी गेट माइनस 5.06, लेकिन माइनस साइन लेंगे तो ये हमें प्लस मिलेगा यहाँ पर। सिमिलरली माइनस 5.06 मिलेगा। सम कहाँ पर करेंगे, सिर्फ ज्वाइंट पे ही करेंगे हम सम। ओके नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, वही मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ ये 0 आएगा, ये 3.13 आएगा, ये माइनस साइन नहीं है, 3.3 आएगा, 3.13 आएगा, ये 1.92 आएगा, ये वैल्यू यहाँ आएगी, इसके लिए ये आएगी, इसके लिए आप कैलकुलेट करके देख लेना, जो ऊपर किया था वैसे ही सेम। नेक्स्ट इज कैरी ओवर। कैरी ओवर मीन्स लेफ्ट की वैल्यू राइट में ले जाएंगे और राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट में लेके आएंगे, लेकिन कौन सी वैल्यू, हाफ वैल्यू। अब 0 का हाफ 0 होगा तो ये आ जाएगा, 3.13 का हाफ होगा 1.56, इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे। सिमिलरली इसको राइट ले जाएंगे, इसको लेफ्ट ले आएंगे, इनकी हाफ वैल्यूज को। दिस इज द मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज द मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन लिख रखा है और फाइनल मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। फाइनल मूवमेंट के लिए ये बात याद रखना कि फाइनल मूवमेंट जब भी कैलकुलेट करेंगे, फाइनल मूवमेंट क्या होगा, फाइनल मूवमेंट विल बी इक्वल्स टू फिक्स्ड एंड मूवमेंट प्लस ये फॉर्मूला यूज होगा। ओके लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। ये कैरी ओवर तक हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड इज दिस। We are here now. We have calculated these values 1.56, 0, 0, minus 0.96, 0.96, 0, 1.56 ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब भी चेक करेंगे कि क्या 0 या उसके आसपास आई। चेक करो ज़रा हर ज्वाइंट पे, ये ज्वाइंट बी की वैल्यू है, ये ज्वाइंट बी की 2 वैल्यूज आई, ये ज्वाइंट सी की 2 वैल्यूज आई। क्या ये 0 या 0 के आसपास है? एक वैल्यू तो 0 है लेकिन दूसरी वैल्यू 0.9 अप्रोक्सीमेट 1 होता है, तो अब भी हम आइट्रेशन को स्टॉप नहीं कर सकते। ओके लेट्स डू रिपीटेशन। समेशन एम, इन दोनों का सम करेंगे, माइनस साइन लेंगे, वी गेट 0.96 एंड अगेन वी गेट माइनस 0.96। next we multiply some minus of summation m into distribution factor, so we get 0.59, 0.36 here ये वैल्यू मिलेगी, यहाँ ये वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे 0 मिलेगी और यहाँ भी 0 मिलेगी। नेक्स्ट कैरी ओवर। कैरी ओवर मीन्स ये इसका हाफ लेफ्ट साइड में, इसका हाफ राइट साइड में, इसका हाफ राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में। सिमिलरली लेफ्ट एंड राइट। 0.59 डिवाइड बाई 2, इसकी हाफ वैल्यू होगी 0.29 एंड हाफ ऑफ 0.36 इज 0.18 एंड हाफ ऑफ माइनस 0.36 इज माइनस 0.18 Similarly half of minus 0.59 is minus 0.29, ये 0 वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ओके after each carryover we should check that whether the value is 0 or not. For joint B these two value should be 0, for joint C these two value should be 0, लेकिन 0 नहीं आई है तो फिर हम एक और आगे आइट्रेशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप दोबारा से रिपीट करेंगे, माइनस ऑफ समेशन एम यानी कि दोनों को ऐड करेंगे और माइनस साइन लेंगे, 0.18 ये माइनस 0.18, इस टाइप से फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ समेशन एम इंटू डी एफ, ये माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस ऑफ समेशन एम इंटू डी एफ, ये मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज हमें मिल जाएंगी जो पहले किया वही प्रोसीजर हम करेंगे। फिर सी ओ हाफ वैल्यू लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, इसकी हाफ वैल्यू राइट साइड लेके जाएंगे और हमें ये वैल्यूज मिल जाएंगी, ये वैल्यूज मिल जाएंगी। अब देखो अब ज्वाइंट बी ज्वाइंट पे ये 2 वैल्यूज आई हैं कैरी ओवर करने के बाद, इसके लिए ये आई है, इसके लिए ये आई है। अब देखो ये तो 0 आ गई, ये क्या है, 0 माइनस 0.03 है, ये वैल्यू है माइनस 0.03, इट इज़ वेरी क्लोज टू 0। नाउ वी कैन स्टॉप आवर आइट्रेशन और वी कैन स्टॉप आवर कैलकुलेशन
because both values are approximate equals to 0. सो आप आगे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप आगे और आइटरेशन कर सकते हैं और इसको एग्जैक्ट 0 कर सकते हैं, एग्जैक्टली 0 आ जाएगा धीरे धीरे। मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। आफ्टर डूइंग दिस नाउ वी कैलकुलेट फाइनल मोमेंट। फाइनल मोमेंट, अब फाइनल मोमेंट कैलकुलेट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फाइनल मोमेंट है क्या। मैं यहां लिख देता हूं फाइनल मोमेंट क्या होता है। फाइनल मोमेंट इज, ये सम होता है किसका, एक तो फिक्स्ड एंड मोमेंट का, फिक्स्ड एंड मोमेंट प्लस ये जितनी बार भी हमने मल्टीप्लाई किया माइनस समेशन m इंटू डी एफ, ये जितने भी प्रोडक्ट हमें मिले वो यहाँ पर ऐड करेंगे, प्लस जितने भी कैरी ओवर वैल्यूज हमें मिली वो हम ऐड कर देंगे। तो फिक्स्ड फाइनल मूवमेंट ये होगा, इनका सम, तीनों का सम। ये फॉर्मूला आप ध्यान से देख ले। फिक्स्ड एंड मूवमेंट, मैं फिर बताता हूँ, फिक्स्ड एंड मूवमेंट प्लस हमने कई बार मल्टीप्लाई किया वो प्रोडक्ट्स एंड CO वैल्यूज, कैरी ओवर की वैल्यूज। इसके अलावा इसमें काफ़ी, इसके अलावा और भी वैल्यूज हैं, वो हमें कंसिडर नहीं करेंगे। एक बात याद रखना, वी डोंट कंसिडर माइनस ऑफ समेशन m अलोन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अलोन। ये दो वैल्यूज, इनकी अलग अलग वैल्यूज हम वी डू नॉट कंसिडर वाइल कैलकुलेटिंग फाइनल मोमेंट, वाइल कैलकुलेटिंग फाइनल मोमेंट। ओके, फाइनल मोमेंट इस रो में जितने भी जो वैल्यूज हैं उनको हम ऐड करके हमें मिलेगा 10.16 एंड इस लाइन में जितनी भी वैल्यूज हैं जिनको ऐड करके हमें मिलेगा 20.36। फॉर दीज वैल्यूज वी गेट माइनस 20.43, फॉर दीज वैल्यूज वी गेट 20.43, फॉर दीज वैल्यूज वी गेट माइनस 20.36 एंड फॉर दीज वैल्यू वी गेट माइनस 10.16। ये जिनको हम ऐड करेंगे उनको मैंने टिक मार्क कर रखा है, उनको मैंने यहाँ टिक मार्क कर रखा है हर कॉलम में, तो आप इसको देख लेना। ये जो वैल्यूज आई हैं 10.16, ये 10.16 मैंने नीचे लिख दिया, ये क्या है, MAB फाइनल मूवमेंट फॉर AB, तो इसको मैंने लिख दिया MAB। फिक्स्ड एंड मूवमेंट को मैंने बार से रिप्रेजेंट किया था, फिक्स्ड एंड मूवमेंट को मैंने बार से रिप्रेजेंट किया था, लेकिन फाइनल मूवमेंट को मैं विदाउट बार रिप्रेजेंट कर रहा हूँ MAB। ये है MAB, ये यहाँ है MBA, मीन्स फाइनल मूवमेंट फॉर BA स्पैन, क्योंकि ये BA का कॉलम है, ये BC का कॉलम है। सो दिस इज MBA, दिस इज MBC, दिस इज MCB एंड दिस इज MCD एंड दिस इज MDC। ये वैल्यूज हैं, इनमें कुछ वैल्यूज प्लस हैं, कुछ वैल्यूज माइनस हैं। मैंने पहले भी बताया है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द मूवमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज, दैट द मूवमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्टेप इज ड्रॉ BMD, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। टू ड्रॉ द BMD फर्स्ट मेक द फ्री मूवमेंट डायग्राम। फर्स्ट मेक द फ्री मूवमेंट डायग्राम। फ्री मूवमेंट डायग्राम का मतलब है कि आप जो स्पोर्ट कंडीशन है, जो एंड कंडीशन है, उनको आप अज्यूम करेंगे एज सिंपली स्पोर्टेड। सपोज करो दिस इज द यूडीएल, BC स्पैन हमारा यूडीएल में है, BC स्पैन को हम सिंपली स्पोर्टेड कंसीडर करेंगे, ऐसे इस टाइप से सिंपली स्पोर्टेड, और इसका BMD ड्रॉ करेंगे, फ्री मूवमेंट डायग्राम जिसको बोलते हैं। इसका फ्री मूवमेंट डायग्राम, एज वी ऑल नो दैट द BMD फॉर UDL इज पैराबोलिक, ये यहाँ मैक्सिमम वैल्यू आएगी सेंटर पे, और ये जो वैल्यू है मैक्सिमम, ये कितनी आती है मैक्सिमम वैल्यू, ये आती है WL² by 8। दिस इज द फ्री मूवमेंट डायग्राम, ओके। ये हमने फ्री मूवमेंट डायग्राम बना लिया। फ्री मूवमेंट डायग्राम सिर्फ BC स्पैन के लिए बनेगा, क्योंकि AB स्पैन के लिए लोडिंग नहीं है, तो फिर मूवमेंट डायग्राम नहीं बनेगा। अब टू स्टार्ट द BMD, फर्स्ट वी शुड रिमेंबर ए स्मॉल रूल। ये एक छोटा सा रूल है, इसको, ये कोई किताब का रूल, किसी बुक का रूल नहीं है, लेकिन ये एक ये आपको फैसिलिटेट करेगा टू ड्रॉ BMD इजीली
इसको समझने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ईच स्पैन। ये मैंने स्पैन ए बी ड्रॉ कर लिया, ये सी डी स्पैन ड्रॉ कर लिया, ये बी सी स्पैन ड्रॉ कर लिया। क्लियर है? ये ड्रॉ करने के बाद बी पे लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पॉजिटिव लिख दिया, यहाँ इसका अपोजिट लिखेंगे माइनस लिख दिया, इसका अपोजिट यहाँ लिखेंगे ये माइनस आ गया, इसका अपोजिट यहाँ लिखेंगे ये आ गया प्लस आ गया। इसको याद, बस इतना सा याद रखें। ये यहाँ पर क्या आ गया? प्लस आ गया। सिमिलरली ये जो आया इसका अपोजिट यहाँ लिख देंगे, ये आया प्लस, फिर इसका अपोजिट जीरो, इसका यहाँ हर जगह इनका अपोजिट लिख देंगे। फॉर स्पैन बी सी ऊपर माइनस लिखेंगे, ऊपर के ऊपर माइनस, फिर नीचे इसका अपोजिट, फिर इसका अपोजिट यहाँ प्लस, फिर इसका अपोजिट यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। बस ये दोबारा से आप इसको रिप्ले करके देख सकते हैं जो मैंने बताया उसको। आफ्टर डूइंग दिस नाउ वी विल मेक द BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। These are the span. This is span AB, this is CD and this is BC। BC स्पैन के लिए जो भी हमने अभी मूवमेंट, फाइनल मूवमेंट कैलकुलेट किए उनको यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। पहले MAB हमारा आया था 10.16 प्लस 10.16 आया था, मीन्स क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो मैंने यहाँ पर इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट शो कर दिया। माइनस और प्लस साइन जब हम मूवमेंट को शो करेंगे तब नहीं, कभी भी नहीं लगाएंगे हम माइनस। क्यों? क्योंकि माइनस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। जब हम डायरेक्शन शो करेंगे तो फिर माइनस या प्लस हम उसमें शो नहीं करेंगे। ओके, सिमिलरली दिस इज फॉर MBA, दिस इज MCD एंड दिस इज MDC। उनके जो साइन है, अकॉर्डिंग टू द साइन we will give the direction to the movements। ओके, यहाँ ये आप देख सकते हैं, ये BC स्पैन के लिए है, ये भी हम डायरेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे इनके अकॉर्डिंग टू देयर साइन। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द नेक्स्ट, देन मेक द नेट BMD। अब हमें वैल्यूज सारी पता है। ये AB स्पैन है, ये यहाँ AB स्पैन है, दिस इज AB स्पैन। AB स्पैन के लिए MAB की वैल्यू है हमारे पास 10, ये प्लस में है 10.16, प्लस में 10.16। और हमें जो मैंने पीछे बताया साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस किधर प्लस लेना है और कहाँ माइनस लेना है, उसके अकॉर्डिंग A पे राइट साइड में हम प्लस लेते हैं। ये 10.16 के लिए यहाँ ले दिया। उसके बाद B पे लेफ्ट साइड में प्लस लेंगे 20.36 था, इसको अप्रोक्सीमेट मैंने कर दिया 20.4, तो ये 20.4 यहाँ प्लस इस साइड आ जाएगा। बस इनको हम आपस में ज्वाइन करवा देंगे इस टाइप से, और ये जो इनको शेडेड जो डायग्राम होगा ये इस स्पैन के लिए BMD होगा। ओके, सिमिलरली BC स्पैन का ये फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री मूवमेंट डायग्राम है, सॉरी, फ्री मूवमेंट डायग्राम के बाद अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन एज वी डिस्कस्ड रिसेंटली, B पे MBC ड्रॉ करेंगे हम। माइनस है ये, माइनस MBC हमारी वैल्यू आई थी, देखो MBC वैल्यू हमारी आई थी -20.4 किलो न्यूटन मीटर। ये वैल्यूज इनकी यूनिट है किलो न्यूटन मीटर में। तो जो वैल्यू माइनस आई थी BC स्पैन के लिए अभी मैंने बताया था, BC स्पैन ऐसे है, तो उसमें माइनस ऊपर से शुरू करते हैं, फिर नीचे प्लस, फिर यहाँ प्लस, फिर ये माइनस, इस टाइप से। तो -20.4 है ऊपर की तरफ हमने 20.4 के लिए ऊपर चले गए, और फिर C पे +20.4 है, ये 20.4 C आ गया C पे। और इसके बाद इनको हमने ज्वाइन कर दिया, और ये जो इनकी ओवरलैपिंग हुई, ये जो शेडेड पोर्शन है, दिस इज द BMD। सिमिलरली यहाँ भी अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन ये हम इस तरह से, ये जो शेडेड है, दिस इज आवर नेट BMD। आई नो दैट आपके काफ़ी क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में, काफ़ी आपकी क्वेरीज होंगी,
तो मैंने यहाँ सारी बात मैं नहीं बता पाया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।